ویلکم ٹو ویوز اینڈ ریئلٹی چینل۔ دوستوں، اگر اکنامک پروگریس کی بات کی جائے تو دنیا میں کئی ممالک نے ریسنٹ پاسٹ میں کافی بہتر پرفارم کیا ہے۔ ان ممالک نے اپنی گروتھ ریٹ کو بڑھایا ہے۔ ان تمام ممالک میں چائنا بھی وہ ملک ہے جس کی اکنامک پروگریس حیران کن ہے۔ آج معیشت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں چائنا نے اپنا لوہا نہ منوایا ہو۔ یہ انہی اچیومنٹس کا نتیجہ ہے کہ چائنا نے پچھلی چند دہائیوں کے مختصر عرصے میں تقریباً 80 کروڑ چائنیز عوام کو غربت کے دلدل سے نکالا۔ دوستوں، ویسے تو چائنا تقریباً 2000 سالوں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کلچر، تجارت و معیشت میں دنیا میں ایک خاص اہمیت کا حامل ملک رہا ہے۔ سلک روڈ سینکڑوں سالوں تک چائنا کی باقی دنیا کے ساتھ زمینی تجارت کا مرکز رہا ہے، جبکہ دنیا میں 4 گریٹ انوینشنز کے نام سے مشہور ایجادات جس میں پیپر، گن پاؤڈر، کمپاس اور پرنٹنگ شامل ہیں، چائنا ہی میں انوینٹ ہوئی۔ لیکن مختلف ادوار میں اندرونی خانہ جنگی، منگول انویژن، یورپین طاقتوں کے زیر تسلط رہنے اور پھر جیپنیز قبضے کے نتیجے میں چائنیز عوام نے کافی مشکلات برداشت کی۔ لیکن جب ہم چائنیز ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل دور کو نہ صرف چائنا نے شکست دی ہے بلکہ مزید طاقت کے ساتھ ابھرا ہے۔ موجودہ چائنا بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل تباہ حال ملک بن چکا تھا۔ رہی صحیح کسر ماؤ کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور چیانگ کائے شیک کی نیشنلسٹ پارٹی آف چائنا کے درمیان ہونے والی چائنا پر حکومت کی لڑائی نے پوری کر دی۔ اگرچہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی فاتح ٹھہری اور چائنا کا نام بھی ریپبلک آف چائنا سے بدل کر پیپلز ریپبلک آف چائنا رکھ دیا گیا، لیکن مسائل جوں کے توں تھے۔ چائنیز گورنمنٹ نے ماؤ کی سربراہی میں انتہائی سخت معاشی اور معاشرتی اصول مرتب کیے۔ ماؤ کی کئی معاشی پالیسیز بری طرح سے ناکام ہوئی، خاص کر گریٹ لیپ فارورڈ جو کہ چائنیز گورنمنٹ کی ایک اکنامک اور سوشل کیمپین تھی، 1958 سے 1962 تک جاری رہی۔ اس کیمپین کے نتیجے میں لوگ شدید قحط سالی کا شکار ہوئے جسے گریٹ چائنیز فیمائن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس ناکام پالیسی کو کور اپ کرنے کے لیے 1966 میں ایک سوشو پولیٹیکل موومنٹ کلچرل ریولوشن کے نام سے شروع کی گئی، جو کہ ماؤ زیڈونگ کی موت یعنی 1976 تک جاری رہی۔ اس تحریک کا اصل مقصد چائنیز اکنامی کو کیپٹلسٹ ٹریڈیشنز سے محفوظ رکھنا تھا۔ نتیجتاً اکنامک ایکٹیویٹیز ٹھپ ہو کر رہ گئیں اور تاریخی کلچرل مٹیریل بھی برباد کر دیا گیا۔ لیکن 1978 میں نئے چائنیز حکمراں ڈینگ زیاؤ پنگ نے ماؤ کی اکنامک پالیسیز سے اجتناب برتنا شروع کر دیا اور دسمبر 1978 میں چائنیز اکنامک ریفارم کی صورت میں نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں۔ اس پالیسی کو اوپننگ اپ پالیسی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ویسٹرن کمپنیز کے لیے چائنا کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس دور سے چائنا کی ترقی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج دن تک جاری ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ترقی چائنیز عوام کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی اور نہ ہی دوسری قوموں سے امیدیں باندھنے سے یا ان کی مدد سے ترقی کے منازل طے کیے، بلکہ اس ترقی کے لیے انہوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا اور بے حد محنت کی اور قلیل ریسورسز کے باوجود خود انحصاری پر زور دیا۔ چائنا دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، جس کی آبادی 1.4 بلین سے زیادہ ہے۔ چائنا کے 22 صوبے ہیں اور میونسپلٹیز اور آٹونومس ریجن اس کے علاوہ ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے چائنا
दुनिया का रूस और कनाडा के बाद तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान और भारत समेत 14 कंट्रीज के साथ लगता है। चाइना ने मईशत के एम पिलर्स यानी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और सर्विसेज पर खास तवज्जो दी। इन तीनों ही शोबों में तरक्की मिसाली रही, चाहे कोई भी ज़रई या सनती पैदावार हो। चाइना इन सब में अपना मकाम रखता है, जबकि कई प्रोडक्ट्स में तो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर यानी ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, होलसेलिंग, रेस्टोरेंट वगैरह में भी चाइनीज दुनिया भर में अपनी एक नुमाया हैसियत रखते हैं। नाजरीन, अब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से चाइनीज इकोनॉमी की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करते हैं। जीडीपी के हिसाब से चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन चूंकि अमेरिका की आबादी चाइना से काफ़ी कम है, इसलिए अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग चाइना से काफ़ी बेहतर है, जो कि लाए करती है 7वें नंबर पे। चाइना 12,970 अमेरिकी डॉलर के साथ 65 नंबर पर आता है, यानी टोटल वेल्थ के हिसाब से चाइना दूसरा वेल्थिएस्ट मुल्क है। यानी इस पूरे अमल को यूं समझें कि टोटल वेल्थ के हिसाब से चाइना दुनिया का दूसरा वेल्थिएस्ट मुल्क है। चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जिसका ग्रोथ रेट 1978 में चाइनीज जीडीपी 150 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो आज 18 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। चाइना की 3 स्टॉक एक्सचेंजेस शंघाई, हांगकांग और शेनज़ेन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 10 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में शामिल हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में लगाए गए हैं। दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से तकरीबन 150 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स चाइना में वाक़ हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना नंबर 1 पे आता है। कपड़े की दुनिया में सबसे बड़ी सनद इस वक्त चाइना में मौजूद है। 2010 से चाइना मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नंबर 1 है, जबकि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरा नंबर है। चाइना लेबर फोर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि तकरीबन 81 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। चाइना की लेबर चीप लेबर के तौर पर मशहूर है। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया में सस्ती तस्वुर की जाती हैं। अलबत्ता इस अमल में सस्ती लेबर के अलावा सस्ती बिजली और बाकी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। चाइना दुनिया के टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल है। चावल की पैदावार में चाइना नंबर 1 पर है, जबकि वीट, बार्ले, सोयाबीन्स, पोटैटोस, कॉटन, ऑयल सीड्स, सी फूड्स, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में चाइना का शुमार टॉप कंट्रीज में होता है। लाइव स्टॉक के एतबार से भी चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, जबकि चिकन और एग की पैदावार में लीडिंग पोजीशन पर है। मादनियात या मिनरल्स की पैदावार के हवाले से चाइना का एक खास मकाम है। सिल्वर, फास्फेट, लेड, सल्फर, जिंक, टाइटेनियम, टिन और डायमंड की प्रोडक्शन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। अब हम इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग पर नजर डालते हैं, जो कि चाइना की कुल जीडीपी का 40.5% है। IHS ग्लोबल इनसाइट की रिसर्च के मुताबिक 2010 में दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ चाइना का हिस्सा 19.8% था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में चाइना का कंट्रीब्यूशन किस हद तक ज़्यादा है। दुनिया की कुल स्टील का 56.5% सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस
होता है, यानी पूरी दुनिया के कुल पैदावार से भी ज्यादा। 2007 में चाइना गाड़ियों की प्रोडक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बाद तीसरे नंबर पर था, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ही चाइना की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की कि 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान ने मिलकर जितनी गाड़ियां बनाई, इससे ज्यादा चाइना ने अकेले ही प्रोड्यूस कर ली। 2018 में 2 करोड़ 70 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग की गई, जबकि अमेरिका 1 करोड़ 13 लाख और जापान 97 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर सका। जहां तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात है तो इस फील्ड में चाइना की दुनिया पर वाज़े बरतरी है। 2020 में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड $446 बिलियन की आलमी तिजारत हुई, जिसमें चाइना का हिस्सा $239.45 बिलियन था, यानी 53.7% ऑफ टोटल अमाउंट की चिप चाइना ने सेल आउट की। जबकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी दुनिया की बड़ी कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रहा है। अब हम सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे। सर्विसेज का चाइना की जीडीपी में सबसे ज्यादा पार्ट है, जो कि 52.9% है। सर्विसेज में यूनाइटेड स्टेट्स का पहला नंबर और चाइना सेकंड रैंक पे आता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने टूरिज्म की सनत पर भी खास तवज्जो दी है, जिसकी वजह ये है कि चाइना में 55 ऐसी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, जिनकी तादाद दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है। इनमें दीवारे चीन, शाही महलात और जदीद चीनी तामीरात शामिल हैं। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक चाइना की जीडीपी में टूरिज्म की 2.6% की कंट्रीब्यूशन है, जो कि $216 बिलियन की अमाउंट बनती है। इन तमाम डेटा को कंसीडर करने के बाद कोई भी शख्स बआसानी अंदाजा लगा सकता है कि चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी आगे निकल चुका है। आज इस मुल्क का शुमार दुनिया की मैसिव पावर्स में होता है। इस तरह के आदादो शुमार हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, खुद इन्हिसारी, दुनिया भर के मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात व कारोबारी रवाबित, मेन पावर का सही यूटिलाइज और अच्छी तर्ज हुक्मरानी, ये लाजमी शराइत हैं। लूप होल्स और प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन इनका मुकाबला किया जाता है, इनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है। अगर चाइना के एजुकेशन सिस्टम पर हम नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि वहाँ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कितने सख्त और कठिन मराहिल पार करने पड़ते हैं। अपने तालीमी करियर की पेचीदगियों को पार करने के बाद जब एक शख्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है तो फिर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ख्वाह कोई भी चैलेंज हो, वो कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। चाइना की करंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखते हुए माहिरीन यही कहते हैं कि आने वाले चंद सालों में चाइना और भी बहुत सी फील्ड्स में दुनिया को लीड करेगा, क्योंकि चाइना ने अपनी तवज्जो इधर उधर के मसाइल में पड़ने की बजाय तिजारत, इकोनॉमी और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने पर मरकूज कर रखी है, ताकि इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मजीद वसी किया जाए। एक्सपर्ट्स ये बात इस बिना पर भी कर रहे हैं कि चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और इन मुमालिक जिनके साथ चाइना के ऑलरेडी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, इनके साथ भी मजीद अपने तिजारती ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। यानी चाइना रिसेंट फ्यूचर में कोई ऐसा कदम उठाता नजर नहीं आ रहा जिससे इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुतासिर हो, जो बल्कि वो ऐसे हर इकदाम उठा रहा है जो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में मजीद इजाफे का जरिया बने।
یہ تھی چائنا کی شاندار اکنامک پروگریس سے متعلق ہماری ایک تحقیقی ویڈیو۔